آپ کی پھپھو کے کتنے بچے ہیں؟ ایک ہی بیٹی ہے اور اسے پتا تھا فرشتے جھوٹ نہیں بولتی۔ اس کا تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کیا عمر ہوگی اس کی؟ مجھ سے تو چند سال چھوٹی ہی ہے۔ نام کیا ہے؟ یہ ضروری تو نہیں ہے محمل۔ فرشتے جیسے ذرا سی مسترب ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے میں آپ کی فیملیز کو ملانے میں کچھ مدد کر سکوں۔ نہیں، فرشتے نے بغور اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ تم میری پھپھو کی بیٹی کو نہیں جانتی۔ پھر بھی کیا ہم یہ ٹاپک چینج کر سکتے ہیں؟ اس کے عزلی ٹھوس اور قطعی انداز پہ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یہ کھڑکیاں بہت خوبصورت ہیں، وہ کہہ کر پرسوچ انداز میں کھڑکی کے باہر اترتی صبح کو دیکھنے لگی۔ ڈاک کھانے کے بعد اس نے سب کے کمروں میں چلے جانے کا انتظار کیا، یہاں تک کہ لاؤنج میں ٹی وی کے آگے جم کر بیٹھی لڑکیاں بھی اٹھ اٹھ کر جانے لگیں اور لاؤنج خالی رہ گیا تو وہ دبے قدموں سے باہر نکلی۔ آج اسے آغا جان کو صاف انکار کرنا تھا۔ لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ آغا جان کے بیڈ روم کے دروازے سے روشنی کی لکیر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے تک آئی۔ قریب تھا کہ وہ دستک دے ڈالتی کہ اندر سے آتی آوازوں نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ اس لڑکی سے کوئی بعید نہیں، آج پھر میرے آفس آ گئی تھی۔ آغا جان کی سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، کون؟ فرشتے؟ تائی کا حیران کن لہجہ، پھر وہی پرانی بات کرنے کے کہ محمل جائیداد میں اس کا بھی حصہ نکالے۔ محمل کو لگا پوری چھت اس پہ آ گری ہے۔ ہاں، آج وہ آفس آئی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر ہم نے وسیم سے محمل کا رشتہ کرنے کی کوشش کی تو تایا جان کچھ کہہ رہے تھے اور چند دن پہلے کی پڑھی گئی ایک حدیث اس کے کان میں گونجی، جس کا فہم کچھ اس طرح تھا کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانکے اور تم پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پہ کوئی گناہ نہیں۔ نہیں، وہ گھبرا کر اٹھی، اسے نہیں دیکھنا چاہیے، وہ غلط کر رہی ہے، وہ کسی کی پرائیویسی میں جھانک رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ واپس کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ دروازے کی کنڈی لگا کر وہ پھولی سانس کو قابو کرتی بیڈ پہ گر سی گئی اور دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ محمل کی جائیداد میں فرشتے کا حصہ؟ کیونکہ اسے شک تھا کہ فرشتے کا اس سے تعلق ضرور ہے اور شاید بلکہ یقیناً وہ اس کے انقطاع کیے ہوئے ننیالی رشتہ داروں میں سے ہے، لیکن پھر بھی تائی کے منہ سے اس کا نام سن کر اسے بہت بڑا دھچکا لگا۔ اس سے بھی بڑا دھچکا فرشتے کا مطالبہ جان کر۔ کیا فرشتے نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ محمل کے حصے میں سے اسے بھی کچھ دیا جائے؟ مگر کیوں؟ فرشتے ایسا کیوں کرے گی؟ اس کی نگاہوں میں ایک سراپا لہرایا، سیاہ عبایا میں ملبوس، گرے اسکارف میں ملائم چہرے کو مقید کیے، سنہری آنکھیں جھکائے، دونوں ہاتھوں میں چھوٹا قرآن پکڑے، بال پوائنٹ سے صفحے پہ کچھ مارک کرتی فرشتے۔ وہ کون تھی؟ اس کا پورا نام کیا تھا؟ وہ ہمایوں سے زیادہ نام ملتی تھی، لیکن محمل کے متعلق ہر خبر اس کے پاس ہوتی تھی۔ وہ کیوں اس کی خبر رکھتی تھی اور وہ کیوں آغا جان سے ملتی تھی؟ بہت سی الجھنوں کے سرے وہ سلجھا نہ پا رہی تھی، لیکن ایک بات طے تھی، فرشتے کا عظمت بھرا وہ تصور جو اس نے ذہن میں بنا رکھا تھا گر کر پاش پاش ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ چینی کی پلیٹیں احتیاط سے کیبنٹ سے نکال کر کاؤنٹر پہ رکھ رہی تھی۔ جب آہٹ پہ چونک کر پلٹی، کچن کے کھلے دروازے میں فطر چچی کھڑی اس کو بغور دیکھ رہی تھی۔ جی چچی، وہ قدرے الجھی، پھر ایک نظر خود پہ ڈالی، سادہ سے گلابی شلوار قمیض پر سیاہ دوپٹہ کندھوں کے گر لپیٹے، سلکی بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں مکویت کیے وہ ہر دن کی طرح ہی لگ رہی تھی۔ پھر چچی کو کیا ہوا؟ کچھ چاہیے چچی؟ اس نے پھر پوچھا۔ اس کی نظریں اب اس کو پریشان کرنے لگی تھی۔ نہیں، فضا چچی نے سر جھٹکا اور واپس چلی گئی۔ جاتے سمے اسے ان کے چہرے پہ ہلکا سا تنفر نظر آیا تھا۔ ان کو کیا ہوا؟ وہ پلیٹیں کپڑے سے صاف کرتے ہوئے سوچنے لگی، پھر شانے اچھا کر کام میں مصروف ہو گئی۔ ڈنر کا ٹائم ہونے والا تھا اور اسے میز لگانی تھی۔ سب آتے ہی ہوں گے۔ میں نے اور مسرت نے وسیم اور محمل کا رشتہ طے کر دیا ہے، آپ سب کو یقیناً علم ہوگا۔ وہ رائتے کا ڈونگا میز پہ رکھ ہی رہی تھی جب آغا جان نے سب کو مخاطب کیا۔ ڈائننگ ہال میں سناٹا سا چھا گیا، گو کہ سب کو معلوم ہی تھا، پھر بھی سب چپ تھے۔ وہ سر جھکائے اپنی آخری کرسی پہ آ بیٹھی اور پلیٹ اپنی جانب کھسکائی۔ یہ فیصلہ آپ نے بالا ہی بالا کر لیا ہے یا مسرت چچی سے پوچھنے کی زحمت بھی کی؟ حسن کے طنزیہ لہجے نے سب کو چونکایا تھا۔ وہ بھی بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جو کھڑے تیوروں کے ساتھ آغا جان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مسرت کی مرضی سے ہوا ہے رشتہ؟ آغا جان برہم بھی ہوئے اور حیران بھی۔ کیوں چچی؟ اس نے خاموشی سے سر جھکائے بیٹی مسرت کو مخاطب کیا۔ آپ کو اس وسیم کا رشتہ منظور ہے جسے خاندان میں کوئی بیٹی دینے کو تیار نہیں؟ مسرت کا سر جھکا، مزید جھک گیا۔
फिजा ने नागवारी से पहलू बदला। बताइए चची, अगर आप खामोश रही तो इसका मतलब है आपके साथ आगा जान ने जबरदस्ती की है। क्या बकवास है ये हसन। आगा जान, मुझे मुसर्रत चची से बात करने दे। हसन की आवाज बुलंद होने लगी थी। सब दम खुद इसको देख रहे थे। बताइए चची, आपको ये रिश्ता मंजूर है? नहीं, महमल ने कतई अंदाज में कहा। इसे मालूम था इसकी माँ कुछ नहीं बोल सकेगी। सबने चौंक कर इसे देखा। खुद हसन भी कदरे ठटका। तुम बीच में मत बोलो, आगा जान बरहम हुए। अभी तो नहीं बोली, निकाह के वक्त इनकार कर दूंगी। ये हक मुझे मेरे दीन ने दिया है। आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं कोर्ट तक चली जाऊंगी। मगर तुम्हें क्या मसला है वसीम से? वो प्राण चचा झुंझलाए। ऐसी ही झुंझलाहट फिजा के चेहरे पे भी थी। अगर वसीम इतना ही अच्छा है तो गुफरान चचा, आप निदा या साम्यवाजी का रिश्ता इसके साथ क्यों नहीं कर देते? बहुत दिनों बाद पूरे घर ने पुरानी महमल देखी थी। शट अप, मैं इनकार कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने मजीद अपनी बेइज्जती करवाने का शौक है तो मैं निकाह के मौके पे इससे भी जोरदार इनकार करूंगी। अरे शुक्र करो कि हम तुम्हें बहू बना रहे हैं। वो देर से खामोश बेटी ताई मेहताब जब्त न कर पाई। जो लड़की एक रात घर से बाहर रह चुकी हो, इसे कोई कबूल नहीं करता। हम बहू ना बनाए तो कौन कबूल करेगा तुम्हें? मैं, हसन जैसे भड़क कर बोला था। मैं कबूल करूंगा महमल को। वो वसीम से शादी नहीं करना चाहती। मैं अपना नाम मुसर्रत चची के सामने रख रहा हूँ। और चची, मैं आपके जवाब का मुंतजर रहूंगा। हरगिज नहीं, फिजा फट पड़ी। मैं इस लड़की को कबूल नहीं करूंगी जो किसी के साथ भाग गई थी। मम्मी, वो जोर से चीखा था। इससे मजीद सुना नहीं गया। वो कुर्सी धकेल कर भागती हुई डाइनिंग हॉल से निकल गई। ब्रिगेडियर फुरकान का बंगला, जिसके टेरेस पे बोगनवेलिया की बेलों का राज था, आज भी से वैसा ही उदास और वीरान लगा था। बल्कि वो शायद हमेशा ही ऐसा होता था। वकील के खुद कुरान पढ़ने और मकान को महक संवारने में बहरहाल फर्क तो होता है। आज फिर वो चंद पम्फलेट्स हाथ में पकड़े इनके गेट पे आ खड़ी थी। बेल पे मुलाजिम ने भागकर छोटा दरवाजा खोला। जी बीवी, इसने सर बाहर निकाला। मुझे ब्रिगेडियर फुरकान से मिलना है। वो अंदर हैं? जी, वो काम कर रहे हैं। इनसे कहो महमल आई है। कदरे तहक्कुम से कहकर वो सीने पे बाजू बांधे वहीं खड़ी हो गई। फौरन मुलाजिम अंदर को दौड़ा। चंद लम्हे बाद ही इसकी वापसी हो गई। साहब कह रहे हैं आप अपने कागज ले लें। इसने पुराने पम्फलेट्स इसकी तरफ बढ़ाए। उन्होंने पढ़ लिए हैं? नहीं जी, वो मसरूफ हैं। अपने साहब को कहो ये इन पे मेरी अमानत थी। जब उन्होंने लिए थे तो मेरी सौंपी गई जिम्मेदारी भी इन्हें निभानी थी, वरना लेने से इनकार कर देते। उन्होंने खयानत करके ये लौटाए हैं और अगर मैंने माफ नहीं किया तो इनको माफी नहीं मिलेगी। मुलाजिम होकू की तरह इसे देखने लगा, फिर अंदर लपका। साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। वो पैगाम देकर जल्द ही वापस आया था। शुक्रिया। वो पूरे एतमाद से अंदर चली गई। स्टडी का दरवाजा खोला था। महमल ने चौखट में खड़े खड़े दरवाजा उंगली की पुश से बजाया। स्टडी टेबल के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे ब्रिगेडियर फुरकान ने किताब के सर झुकाया उठाया और ऐनक के पीछे से इसे देखा जो दरवाजे के बीच खड़ी थी। यूनिफॉर्म की सफेद शलवार कमीज और चेहरे के गिर्द नफासत से लिपटा तरोताजा गुलाबी स्कार्फ जो पीछे से ऊंची पोनी के बाहर जरा सा उठ गया था। हाथ में चंद पॉम्पलेट्स पकड़े वो दराज कद सुनहरी आंखों वाली लड़की मुंतजिर सी खड़ी थी। कमीन ब्रिगेडियर फुरकान ने चश्मा उतार कर मेज पे रखा, किताब बंद की और कुर्सी पे कदरे पीछे खुद टेक लगाई। मैं कुछ पम्फलेट्स देकर गई थी और मैंने वापस कर दिए थे। और कुछ? इनके बारोब चेहरे पे कदरे नागवारी थी। जी, ये कुछ और हैं। वो आगे बढ़ी और चंद पम्फलेट्स इनकी मेज पर रखे। ये आप पढ़कर मुझे वापस कर दीजिएगा। मगर मुझे ये नहीं चाहिए, वो बेजार से बोले। मैंने आपको चॉइस तो नहीं दी सर, आपको ये लेने पड़ेंगे। मैं कुछ अरसे बाद आकर आप वापस ले लूंगी। पढ़कर संभाल लीजिएगा, इनमें अल्लाह का नाम लिखा है। उम्मीद है आप फेंकेंगे नहीं। वो खड़ी खड़ी कहकर तेजी से वापस पलट गई। ब्रिगेडियर फुरकान ने तिल मिलाकर एक नजर इन पम्फलेट्स को देखा, फिर दराज में डालकर अपनी ऐनक उठाई और कुछ बड़बड़ाते हुए किताब खोल ली। वो अपनी धुन में राहदारी में चलती जा रही थी कि अचानक दूसरी तरफ से आती फरिश्ते पर निगाह पड़ी। इसके लब भींच गए। बेख्तियार ही वो पीछे हुई थी। फरिश्ते ने इसे नहीं देखा था। वो अपने साथ चलती टीचर से फिक्रमंदी से कुछ कहती चली आ रही थी। महमल उल्टे कदमों वापस हुई और बरामदे में रुख मोड़ कर खड़ी हो गई। इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक फरिश्ते ने इसकी मौजूदगी नोट नहीं की। साथ ही टीचर के हमरा नीचे प्रेयर हॉल की सीढ़ियां उतरती चल गई थी। प्रेयर हॉल में मुल्क के नामवर दीनी स्कॉलर डॉक्टर सरवर मिर्जा के लेक्चर का इनकाद था। वो 20 से चलती हुई एक दरमियानी सफ की निशस्त पे आ बैठी। अभी लेक्चर शुरू नहीं हुआ था। महमल ने हाथ में पकड़ा पॉकेट साइज कुरान खोला और यूं ही पढ़ने सफ़े पलटने लगी। फरिश्ते ने ऐसा क्यों किया? ये सवाल इसके जहन में गर्दिश कर रहा था। इसने आगा जान से महमल की जायदाद में हिस्सा क्यों मांगा?
फरिश्ते जैसी लड़की इतनी मादा परस्त हो सकती है, वो तो सोच भी नहीं सकती थी। इसने मतलूबा सफा पलटा और आयत निकाली जो आज पढ़ाई जाने वाली थी, मगर डॉक्टर सरवर के लेक्चर के बाद आज तफसीर की क्लास नहीं होना थी। और इन चीजों के बारे में सवाल ना करो जो अगर जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें बुरी लगे। ओह, गहरी सांस लेकर महमल ने कुरान बंद किया। मेरा कुछ भी प्राइवेट नहीं है। इसने आहिस्ता से गर्दन ऊपर को उठाई और फिर ऊपर देखते हुए मुस्कुरा कर सर झटका। जब भी ऐसा कुछ होता इसे कुरान पे बेहद प्यार आता था। इसे लगता था दुनिया में इससे तेज कोई कम्युनिकेशन मूड इजाजत नहीं हुआ था। मगर ऐसा क्या है जो मुझे इस सवाल का जवाब बुरा लगेगा? वो ना चाहते हुए फिर से सोचने लगी थी। डॉक्टर सरवर लेक्चर शुरू कर चुके थे। पूरा हाल कचाकच भरा था। दूर दूर तक पिंक स्कार्फ में ढके सर दिखाई दे रहे थे। स्टेज के करीब चेयर्स पे स्टाफ मौजूद था। फरिश्ते भी वहीं एक कुर्सी पे बैठी डायरी पे तेज तेज लेक्चर नोट कर रही थी। इसे नोट्स लेते देखकर वो खुद भी चौंक कर डॉक्टर सरवर की तरफ मुतवज्जा हुई, जो रोस्टम पे खड़े थे। सर पे जना के सफेद दाढ़ी, शलवार कमीज और वास्केट में मलबूस वो खासे मंचे हुए स्कॉलर थे। वो अक्सर इनको टीवी पे देखती रहती थी। अपनी सोचों को झटक कर वो बखौर लेक्चर सुनने लगी। बाद लोग कुरान पढ़कर भटकते हैं, वाकई ऐसा होता है, वो अपने मखसूस अंदाज में कह रहे थे। इसलिए बेहतर है कि कुरान किसी अच्छे खैर मुतासिब आलिम से जिंदगी में एक दफा जरूर पढ़ लेना चाहिए। मगर इसका ये मतलब नहीं कि किसी का दामन पकड़ना जरूरी है, नहीं, बल्कि किसी गैर मुतासिब तफसीर को पढ़कर भी किसी हद तक कुरान की समझ बूझ पैदा की जा सकती है। कुरान को पढ़कर हम हर आयत के अपने हालात के मुताबिक कई मतलब निकाले, वो मतलब निकालना गलत नहीं है, मगर जाहिर को बातन से तशबीह देना कतन गलत है। मसलन बनी इसराइल को कोई गाय ज़िबा करने का जो हुक्म अल्लाह सुब्हान ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए दिया था, वो हम सब जानते हैं। इस वाक़े से हम ये सबक तो निकाल सकते हैं कि कसरत सवाल से हुक्म मुतशाबा हो जाते हैं, मगर इससे ये मतलब हरगिज़ नहीं निकलता। एक सहाबिया है, नाउज़ बिल्लाह, बाज़ लोगों ने वाक़ियतन यहाँ गाय से मुराद एक सहाबिया को लिया है। एक और मिसाल सूरह हिज्र की आखिरी आयत में है कि अपने रब की इबादत करो यहाँ तक कि तुम्हारे पास यकीन आ जाए। अब यहाँ यकीन से मुराद मौत है, यानी मौत आने तक इबादत करते रहो। मगर बाज़ लोग यहाँ यकीन से मुराद बिलीफ लेकर अपनी इबादत को काफ़ी समझकर बस कर देते हैं कि जी हमें अपनी इबादत पे यकीन आ गया है, सब इबादतें बस खत्म। सूरह हिज्र कहाँ थी भला? इसने आहिस्ता से अपना छोटा कुरान खोला और सफ़ा पलटने लगी। सूरह हिज्र मिली है तो इसने इसकी आखिरी आयत खोली। आयत वही थी जो वो कह रहे थे, मगर आखिरी 3 अल्फाज अरबी में हत्तिल यातुल यकीन थे, या हत्ता के यकीन आ जाए। यकीन। उसने अल यकीन पर उंगली फेरी, फिर उलझ कर डॉक्टर सरवर को देखा। वो कह रहे थे यहाँ पे यकीन से मुराद यकीन नहीं बल्कि मौत है। तो इस तरह के अल्फाज का मन चाहा मतलब निकालना इंसान को भटका सकता है। एनी क्वेश्चन? उन्होंने रुककर एक गहरी निगाह हॉल पे डाली। महमल ने हाथ फजा में बुलंद किया। यस, उन्होंने सर के इशारे से इजाजत दी। वो हाथ में कुरान पकड़े अपनी नशिस्त से उठी। सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मेरे पास बगैर तर्जुमे वाला मुसहफ है। इसमें मज़कूरा आयत में वाक़ियतन यकीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब मौत कैसे हुआ? दोनों अल्फाजों में खासा फर्क है। इसका मतलब मौत ऐसे है कि वो जरा देर को रुके और बगौर इसे देखा। मैंने इसका मतलब मौत निकाला है। जी सर, मेरा यही सवाल है कि कैसे? इसकी दलील क्या है? दलील ये है कि मैंने डॉक्टर सरवर मिर्जा ने इसका मतलब मौत लिया है। मैं इस मुल्क का सबसे बड़ा इस्लामिक स्कॉलर हूँ। आप मेरे क्रेडिट पेंशन उठा कर देखे, मेरी डिग्रीज देखे। क्या मेरी बात बतौर एक ठोस दलील के काफी नहीं? अगले सफों में बैठी लड़कियां गर्दनें मोड़कर इसे देखने लगी थी, जो हाथ में छोटा कुरान पाक पकड़े खड़ी थी। सर, आपकी बात यकीनन अहम है, मगर कुरान का बात इसके पास की तफसीर करता है। हदीस भी ये करती है। क्या कुरान या हदीस में कहीं ये जिक्र है कि यहाँ यकीन से मुराद मौत है? वो बहुत शाइस्तगी और लिहाज से मुअद्दब से पूछ रही थी। डॉक्टर सरवर के चेहरे पे वाज़ेह नागवारी उभरी। यानी कि अगर मैं आपको इसके मतलब की दलील ना दूं तो इसे महज मेरी बात समझकर आप जुटला देंगी? यानी आपको मेरी बात के ऊपर मजीद कोई दलील चाहिए? जी, इसने हौले से सर हिला दिया। पूरे हॉल में एक इज़्तिराब की लहर दौड़ गई। लड़कियां कदरे परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगी।
यानी आप एक दीनी स्कॉलर को चैलेंज कर रही हैं। सर मैं बहुत अदब से सिर्फ दलील मांग रही हूँ। अगर इसकी दलील कुरान और हदीस में ना हो तो क्या आप यकीन का मतलब मौत तस्लीम कर लेंगी? नहीं सर, कभी भी नहीं। डॉक्टर सर्वर ने गहरी सांस लेकर हॉल पे एक नजर दौड़ाई। क्या कोई और भी है जो अपनी उम्र से ज्यादा तवील तजुर्बे के हामिल एक स्कॉलर को चैलेंज करे? किसी और को भी दलील चाहिए? बहुत से सर नफी में हिल गए। वो अकेली खड़ी थी। यानी 300 लड़कियों में से एक लड़की को दलील चाहिए? यही पढ़ा रहे हैं आप लोग इस मस्जिद में? कौन है आपकी क्लास का इंचार्ज? मैडम मिसबा खड़ी हुई। क्या आप इस नाकाम क्लास रिपोर्ट की जिम्मेदारी लेती हैं? 1 आउट ऑफ 300 की। जी सर। मैडम मिसबाह का सर कदरे झुक गया। डॉक्टर सरवर ने महमल को देखा। क्या आपको अभी भी दलील चाहिए? जी सर। वो कुछ देर खामोशी से इसका चेहरा देखते रहे, फिर हल्के से मुस्कुराए। अल मुदस्सिर आयत 13 और 17 में यकीन का लफ्ज मौत के लिए इस्तेमाल है। वहाँ से हम दलील लेते हैं कि यहाँ भी यकीन से मुराद मौत ही है। मुझे खुशी कि आपने मरूब हुए बगैर अदब के दायरे में रहकर मुझसे दलील मांगी, और मुझे अफसोस है कि सिर्फ एक बच्ची ने ये जुर्रत की, बाकी सब खामोश रही। 299 लड़कियों में से यकीनन अभी एक कम ही मौजूद है जो कि कुरान क्लास की नाकारा कारकर्दगी का सबूत है। क्या कोई शख्स डिग्रियों का पलंदा लेकर आपके सामने आए, खुद को सबसे बड़ा मजहबी स्कॉलर बताए, तो आप इसकी बात को बतौर दलील मान लेंगे? क्या आपको पहले दिन ही नहीं बताया गया कि दलील सिर्फ कुरान या हदीस होती है, किसी आलिम की बात दलील नहीं होती? फिर बहुत सी गुलाबी स्कार्फ में लिपटे सर झुक गए। महमल सर खुरू सी अपनी निशिस्त पे बैठी। डॉक्टर सरवर और भी बहुत कुछ कह रहे थे, मगर वो सूरह मुदस्सिर खोलकर इस आयत के काउंटर चेक कर रही थी। सूरह मुदस्सिर की 13 और 17 तक का तर्जुमा डॉक्टर सरवर की तस्दीक कर रहा था। महमल लेक्चर के बाद वो कॉरिडोर में गुजर रही थी जब फरिश्ते ने इसे पीछे से पुकारा। इसके कदम वहीं थम गए, मगर वो मुड़ी नहीं। फरिश्ते तेज तेज चलती इसके करीब आई। आई एम प्राउड ऑफ यू महमल। वो यकीनन बहुत खुश थी। ग्रे स्कार्फ में मुकीत इसका चेहरा दमक रहा था। महमल अजनबी नजरों से इसे देखती रही। डॉक्टर सरवर तुमसे बहुत खुश हैं। उन्होंने एक सेमिनार के लिए तुम्हारा नाम दे दिया है और तुम मेरे साथ इधर जाकर स्पीच करोगी। आपके साथ? वो बोली तो इसकी आवाज में फिजाओं की सी खुशकी थी। फिर मुझे नहीं जाना? क्या मतलब? फरिश्ते की मुस्कुराहट पहले मदम हुई, फिर आंखों में हैरत उभरी। मुझे झूठे लोग सख्त नापसंद है महमल। वो शर्जरे गई। मैंने कौन सा झूठ बोला है? ये सवाल आप खुद से क्यों नहीं करती? तुमसे किसी ने कुछ कहा है? मैं बच्ची नहीं हूँ फरिश्ते। वो गोया फट पड़ी थी। अंदर उबलते लावे को बाहर का रास्ता नजर आ गया था। आप क्यों गई मेरे आगा जान के पास? क्या लगते हैं वो आपके? मैं एक यतीम लड़की हूँ। क्या आपको यतीम के माल में से हिस्सा चाहिए? क्योंकि आपने ऐसी हरकत की, आपको जाने किस ऊंचा मसन पे बिठा रखा था। मैंने बहुत बुरी तरह खुद को गिराया है आपने। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा करेंगी। क्या रिश्ता है आपका मुझसे? आप झूठ नहीं बोलती, मगर सच छुपाना भी तो झूठ होता है। मैंने पूछा आपकी फुप्पो की बेटी का क्या नाम है? आपने नहीं बताया। क्यों? आखिर क्यों? फरिश्ते का चेहरा सफेद पड़ गया। जज्बात से आ रही बिल्कुल साकित जामिद वो बिना पलक झपके महमल को देख रही थी। कितनी ही देर वो कुछ कह ना सकी, फिर आहिस्ता से लब खोले। क्योंकि मेरी फुप्पो की बेटी का नाम फायका है। जी? इसका दिमाग भग से उड़ गया। मैंने कहा था ना कि तुम नहीं जानती। मेरी फुप्पो की बेटी का नाम फायका है। मैं फरिश्ते इब्राहिम हूँ, आगा इब्राहिम की बेटी। जाओ अपने घर में किसी से पूछो। मगर वो क्यों बताएंगे? वो मेरी हैसियत तस्लीम नहीं करते तो कैसे बताएंगे? वो थके थके अंदाज में कहकर इसके एक तरफ से निकल कर चली गई। महमल मुड़कर इसको जाता भी न देख सकी। इसे तो जैसे किसी ने इधर ही बर्फका बना दिया था। वो धुआं धुआं होते चेहरे के साथ बीच कॉरिडोर में बुत बनी खड़ी थी। फरिश्ते इब्राहिम, आगा इब्राहिम की बेटी। इसे पूरी मस्जिद में इन चंद अल्फाज की गूंज पलट कर सुनाई दे रही थी। इसे नहीं मालूम वो किन कदमों पे चलकर मस्जिद के गेट तक आई थी। बस वो पत्थर का बुत बनी खुद को घसीटती हर शेर से गाफिल चलती जा रही थी। इसका बैग और किताबें क्लास में रह गए थे। इसने इन्हें साथ नहीं लिया था। इसे लग रहा था इसका बहुत कुछ मस्जिद में खो गया है। वो क्या क्या समेटती। बराबर वाले बंगले की दीवार के साथ नज बेंच पे वो गिर सी गई। आगा इब्राहिम की बेटी, फरिश्ते इब्राहिम। इसका दिमाग इन्हीं दो जुमलों पे मुंजमद हो गया था। आगे बढ़ता था ना पीछे हटता था। दूर कहीं याद के पर्दे पे आगा जान की आवाज ले रही, इस लड़की से कुछ बैद नहीं, आज फिर मेरे ऑफिस में आ गई थी। फिर आ गई थी। उसका जहन जैसे चौंक कर बेदार होने लगा। फिर का मतलब था वो पहले भी इधर जाती रहती थी। वो सब इसको जानते थे और शायद इससे खैर भी थे। तो क्या वो वाकई आगा इब्राहिम की बेटी थी? नहीं। इसने तनफ्फुस से सर झटका। आगा इब्राहिम की बेटी सिर्फ एक है
और वो मैं हूँ महमल इब्राहिम, मेरी कोई बहन नहीं है, मैं नहीं मानती। वो जोर जोर से नफी में सर हिला रही थी। इसे लग रहा था आज इसके दिमाग की रग फट जाएगी। गुस्सा था कि अंदर ही अंदर उबल रहा था। क्या वाकई वो अब्बा की बेटी है? मगर इसकी माँ कौन है? मेरी माँ नहीं, मगर मुझे कौन बताएगा? आगा जान और ताई तो कभी नहीं, अम्मा को शायद पता भी ना हो, फिर किससे पूछूं? वो चकरा कर रह गई और सर दोनों हाथों में गिरा दिया। मगर अगले ही लम्हे जैसे झटके से सर उठाया हुमायूं, और फिर इसने कुछ नहीं सोचा और गेट की तरफ लपकी। साहब अंदर है, मुझे अंदर जाना है। जी आप चले जाओ। चौकीदार फौरन सामने से हटा। वो अंदर की तरफ दौड़ी। जहां तरस का लाउंज खाली था। वो इधर उधर देखती आगे बढ़ी, फिर किचन के खुले दरवाजे को देख कर रुकी। कुछ सोचकर वो किचन में आई। मार्बल फ्लोर का चमकता साफ सुथरा किचन खाली पड़ा था। चमचों का स्टैंड सामने ही था। इसने लपक कर एक बड़ी छुरी निकाली और आस्तीन में छुपाकर बाहर आई। हुमायूं लाउंज में खड़े गर्दन ऊपर करके इसने पुकारा। आवाज गूंज कर लौट आई। इसका कमरा ऊपर था, ये तो उसे याद था। वो तेज तेज सीढ़ियां चढ़ने लगी। सिया मार्बल की चमकती सीढ़ियां गोलाई में ऊपर जा रही थी। वो बालाई मंजिल पे रुकी, इधर उधर झांका, फिर तीसरी मंजिल की सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। दफ्तर सामने वाले कमरे से इसकी आवाज आई। बिल्किस, वो अंदर से गालबन मुलाजमा को आवाज दे रहा था। वो दौड़कर इसके कमरे के दरवाजे तक आई। दरवाजा खोले। इसे दरवाजा जोर से बजाया और फिर धड़ाधड़ बजाती चली गई। कौन? हुमायूं ने हैरान सा होकर दरवाजा खोला। इसे देखकर वो बुरी तरह चौंका। तुम? खैरियत? मुझे आपसे कुछ पूछना है। ठीक ठीक बताइएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इतनी चारहाना अंदाज में कुराई थी कि वो परेशान ही हो गया। क्या हुआ है मामल? मेरी बात का जवाब दें। अच्छा अंदर आ जाओ। वो इसे रास्ता देते हुए पीछे हुआ। ब्लैक ट्राउजर पे ग्रे आधे बाजुओं वाली शर्ट पहने, हाथ में तौलिया पकड़े वो गालबन अभी नहा कर निकला था। माथे पर बिखरे गीले बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। वो 2 कदम अंदर आई, यूं कि अब दरवाजे की चौखट में खड़ी थी। आप फरिश्ते के कजन हैं? हाँ, क्यों? फरिश्ते किसकी बेटी है? इसका बाप कौन है? बाप? वो जरा सा चौंका। इसने तुमसे कुछ कहा है? मैंने पूछा है फरिश्ते किसकी बेटी है। वो दबी देबी से गुर्राई थी। इधर बैठो, आराम से बात करते हैं। वो इसको रास्ता देता इसके बाएं हाथ की तरफ करीब आया। मैं बैठने नहीं आई, मुझे जवाब चाहिए। इधर बैठो तो सही। ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। वो बच्चों की तरह इसे बहलाते हुए आगे बढ़ा और नरमी से इसका हाथ थामना चाहा। हाथ मत लगाए मुझे। वो बिदक कर पीछे हटी। महमल इधर आओ। वो 2 कदम आगे इसके करीब आया ही था कि महमल ने अचानक आस्तीन में छुपी छुरी निकाल ली। मुझे आप पे भरोसा नहीं है, दूर रहें। वो छुरी की नोक इसकी तरफ किए 2 कदम पीछे हटी। छुरी क्यों लाई हो? मुझे मारने? इसके माथे पे बल पड़े और आंखों में गुस्से की लहर उभरी। वो तेजी से बढ़ा और महमल का छुरी वाला हाथ कलाई से पकड़कर मरोड़ा। छोड़े मुझे, वरना मैं आपको मार दूंगी। वो इसकी मजबूत गिरफ्त के बावजूद कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। दूसरे हाथ से इसने इसके कंधे को पीछे धकेलना चाहा। हुमायूं इसके छुरी वाले हाथ का रुख दूसरी तरफ मोड़ रहा था और फिर इसे पता भी न चला और छुरी की तेज धार गोश्त में घुसती चली गई। महमल को लगा वो मरने वाली है। इसने खून उबलते हुए देखा और फिर अपनी चीख सुनी, मगर नहीं, इसे छुरी नहीं लगी थी। फिर वो कराह कर पीछे हटा तो महमल की कलाई आजाद हो गई। हुमायूं के दाएं पहलू में से खून उबल रहा था। वो छुरी पे हाथ रखे लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हटा था। ओह मेरे अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? खौफ से इसकी आंखें फट गईं। छुरी पे रखा हुमायूं का हाथ खून से सुर्ख पड़ने लगा था। वो दर्द की शिद्दत से आंखें बंद किए दीवार के साथ बैठता चला गया। वो दहशत ज़दा सी इसे देख रही थी। इसका पूरा जिस्म कांपने लगा। यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब इसने किया है। खुदाया, ये इसने क्या कर दिया? वो फटी फटी आंखों से इसको देखती कदम कदम हटने लगी और फिर एकदम मुड़ी और तेजी से सीढ़ियां फलांगती गई। पूरी कुव्वत से लॉन्च का दरवाजा खोलकर वो बाहर भागी थी। चौकीदार गेट पे नहीं था। कहाँ था इसे परवाह न थी। वो तेज दौड़ती हुई मस्जिद में दाखिल हुई थी। फरिश्ते किधर हैं? पुलिस सांसों के दरमियान पूछती। वो जरा देर को रिसेप्शन पे रुकी थी। फरिश्ते बाजी लाइब्रेरी में होंगी या? इसने पूरी बात नहीं सुनी और राहदारी में दौड़ती गई। लाइब्रेरी के इसी कोने में कुर्सी डाले वो दोनों हाथों से चेहरा छुपाए बैठी थी। वो बदहवास सी भागती हुई इसके सामने जा रुकी। आहट पे फरिश्ते ने चेहरे से हाथ हटाए। इसे देखकर इसकी निगाहें झुक गईं। मैं जानती हूँ तुम हर्ट हुई हो। एक गहरी सांस लेकर वो अपनी रो में कहने लगी थी, और मैं इसी डर से तुम्हें ये पहले नहीं बता। कहते कहते फरिश्ते ने निगाहें उठाई और फेंकले अल्फाज में इसके लबों पे दम तोड़ गए। महमल के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी। महमल क्या हुआ? वो परेशान से खड़ी हुई। फरिश्ते फरिश्ते, वो हुमायूं, वो रो देने को थी।
क्या हुआ हुमायूं को, बताओ महमल। इसने फिक्रमंदी से महमल को दोनों शानों से थाम कर पूछा। वो हुमायूं मर गया। महमल के शानों पे इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। इसे लगा वो अगला सांस नहीं ले सकेगी। ये क्या कह रही हो? मैंने जानबूझकर नहीं। हुमायूं, वो इसे छुरी लग गई, मैंने गलती से इसे मेरी। वो किधर है अभी? फरिश्ते ने तेजी से बात काटी। अपने घर बेडरूम में। फरिश्ते ने अगला लफ्ज नहीं सुना और तेजी से बाहर की तरफ भागी थी। वो कहीं भी जाती तो हमेशा इसका हाथ पकड़कर इसे साथ लेकर जाती थी। आज इसने इसका हाथ नहीं थामा था। आज वो अकेली भागी थी। उसे खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस वो भी फरिश्ते के पीछे लपकी थी। हुमायूं, हुमायूं। वो महमल के आगे भागती हुई हुमायूं के लाउंज में दाखिल हुई थी और इसे आवाजें देती सीढ़ियां चढ़ रही थी। हुमायूं, वो आगे पीछे गोल सीढ़ियों के दहाने पे रुकी थी। हुमायूं कमरे की बैरूनी दीवार के साथ लगकर जमीन पे बेटा था। खून आलूद छुरी के एक तरफ रखी थी। हुमायूं, तुम ठीक हो? वो परेशान सी घुटनों के बल इसके सामने बैठी थी। इसने जैसे चौंक कर आंखें खोली। तुम इधर? अपने सामने घुटनों के बल बैठी फरिश्ते से होती हुई इसकी नजर इसके पीछे खड़ी महमल पर जा रुकी। मुझे महमल ने बताया कि फरिश्ते तुम जाओ और बेवकूफ लड़की को भी ले जाओ। मगर हुमायूं, मैंने हेमर को कॉल कर दिया है, पुलिस पहुंचने वाली है। तुम दोनों की इधर मौजूदगी ठीक नहीं है, जाओ। दैत की शिद्दत से बदिक्कत बोल पा रहा था, मगर फरिश्ते ने तजबदत से गर्दन मोड़ कर महमल को देखा, जो सफेद पड़ता चेहरा लिए इधर खड़ी थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था वो इस वक्त क्या करे। मैंने कहा ना जाओ, वो घुटी घुटी आवाज में चिल्लाया था। अच्छा, वो घबरा कर खड़ी हुई। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, बेशक मुझे पुलिस पकड़ ले, मगर मैं। महमल जाओ, वो जोर से चीखा था। चलो महमल। फरिश्ते ने जिससे फैसला करके इसका हाथ पकड़ा और सीढ़ियां उतरने लगी। हुमायूं, मैंने जानबूझकर नहीं किया, आई एम सॉरी, आई एम रियली। फरिश्ते इससे आगे इसका हाथ खींचती हुई सीढ़ियां उतर रही थी, मगर वो इसी तरह गर्दन मोड़कर हुमायूं को देखती रोहानसी सी कहे जा रही थी, जस्ट गो। वो वहीं से झिझला कर बोला था और अब सीढ़ियों के दरमियान में थी। वहां से इसे हुमायूं का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। आंसू इसकी आंखों से उबल रहे थे। फरिश्ते इसका हाथ खींचकर इसे बाहर ले आई थी। तुम क्यों गई इसके घर महमल? मुझे बताओ, इधर क्या हुआ था? मस्जिद के गेट पे फरिश्ते ने पूछा तो इसने अपना हाथ जोर से छुड़ाया और रुख फेर लिया। महमल, नाराज मत हो, अभी वहाँ मेरी और तुम्हारी मौजूदगी ठीक नहीं है। वो इधर मर रहा है और आप। इसकी आंखों से मुतवातिर आंसू गिर रहे थे। वो अभी से अस्पताल ले जाएंगे, जख्म बहुत ज्यादा नहीं था, वो ठीक हो जाएगा। मगर तुमने क्यों मारा इसे? मैं भला यूं हुमायूं को मार सकती हूँ? मैं कर सकती हूँ ऐसा? वो एकदम फूट फूट कर रोने लगी थी। फरिश्ते बुरी तरह चौंकी थी। महमल के चेहरे पे छाया हजन मलाल और वो आंसू, वो आम आंसू तो न थे। मैंने जानबूझकर नहीं किया ऐसा, आई स्वेर। अच्छा अंदर आओ, आराम से बात करते हैं। इसने खुद को संभाल कर कहना चाहा, मगर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने भी यही कहा था, मेरा कसूर नहीं था। वो इसी तरह गेट पे खड़ी रोए चली जा रही थी। वो ठीक तो हो जाएंगे फरिश्ते। हाँ, फरिश्ते ने शायद इसकी बात नहीं सुनी थी, बस गुमसुम सी इसकी आंखों से गिरते आंसू देख रही थी। वो वाकई आम आंसू न थे। मैं घर जा रही हूँ, प्लीज आप मुझे हुमायूं के बारे में बताती रहिएगा। अच्छा, इसने गायब दिमागी से सर हिला दिया। महमल अब दरख्तों की बाढ़ के साथ दौड़ती हुई दूर जा रही थी। वो जिसे निठार से गेट से लगी थी, यकटक इसे देखी गई। हाँ, वो आंसू बहुत खास थे। अस्पताल का टाइल से चमकता कॉरिडोर खामोश पड़ा था। कॉरिडोर के इख्तिताम पे वो बेंच पे सर झुकाए बैठी थी। महमल जो दौड़ती हुई इधर आ रही थी, इसे बैठे देख कर लम्हे भर को ठटकी, रुकी, फिर भागती हुई इसके करीब आई। फरिश्ते 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 ने हाथों में गिरा सर उठाया। वो कैसा है? महमल इसके सामने पंजों के बल बैठी और दोनों हाथ इसके घुटनों पे रखे। बताई ना, वो कैसा है? वो बेकरारी से इसकी सुनहरी आंखों में देखती जवाब तलाश कर रही थी। ठीक है, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। वो भी महमल की बुरी आंखों में कुछ तलाश कर रही थी। मैं इससे मिल सकती हूँ? अभी वो होश में नहीं है। क्यों? वो तड़प कर बोली थी। वो फजर का वक्त था और जैसे ही फरिश्ते ने इसे इत्तला दी थी, वो भागते हुए आई थी। डॉक्टर्स ने खुद इसे सुला रखा है, वो ठीक हो जाएगा। महमल, तुम परेशान ना हो। मैं कैसे परेशान ना हूँ? मैंने इनको छुरी मारी है। मैं, ऐसा क्या हुआ था महमल? तुमने क्यों ऐसा? मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं इनसे पूछने गई थी कि उलट कुचलती डुबडुबाती आंखों से कहती चली गई। फरिश्ते इसी थके थके अंदाज में से देख रही थी तो मुझसे पूछ रही थी, महमल इसको खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। चंद लम्हे यूं ही सड़क गए। वो इसी तरह फरिश्ते के सामने फर्श पर दोजाना बैठी थी। इसके हाथ अभी तक फरिश्ते के घुटनों पे थे। बहुत देर बाद इसने खामोशी को चीर दिया। आपने कहा आप आगा इब्राहिम की बेटी है?
हाँ, मैं आगा इब्राहिम की बेटी हूँ। मेरे अब्बा की इसका गला रुंध गया। तभी ये अनहोनी क्यों लगती है? सिवाय तुम्हारे सब बड़ों को इल्म है, तुम्हारी अम्मी को भी इसे झटका लगा। हाँ, अब्बा मुझसे मिलते थे। मेरी अम्मी इनकी फर्स्ट वाइफ थी। डिवोर्स के बाद अम्मी और अब्बा अलग हो गए थे। फिर उन्होंने तुम्हारी अम्मी से शादी की। दोनों इनकी पसंद की शादियाँ थी, है ना? अजीब बात। खैर, मुझसे वो हर वीकेंड पे मिलने आते थे। मैं अपने चचाओं से मुतारिफ तो ना थी, मगर वो सब जानते थे कि मैं कौन हूँ, किधर रहती हूँ। मगर अब्बा की डेथ के बाद उन्होंने मुझे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मैं बहुत दफा अपना हक मांगने गई, मगर वो नहीं देते। अब्बा की पहली शादी खुफिया थी, सिवाय हमारे बड़ों के खानदान में किसी को इल्म न था। तुमसे भी छुपा कर रखा गया था कि कहीं तुम मेरे साथ मिलकर हिस्सा ना मांगने खड़ी हो जाओ। आपने केस क्यों नहीं किया इन पे? वो देर बाद वो बोल पाई थी, मुझे जायदाद से हक नहीं, रिश्तों से हक चाहिए मामल। मैं बहुत दफा तुम्हारे घर पे गई हूँ, मगर अंदर दाखिला। खैर, ये लंबी कहानी है। मैं कई बरसों से अपने हक की जंग लड़ रही हूँ। वारिस अल्लाह ने बनाए हैं, मैं अब्बा की वारिस हूँ। यही सोचकर अपने जायदाद में हिस्सा मांगती हूँ, मगर वो बात अधूरी छोड़ गई। आपको पता था मैं आपके बारे में नहीं जानती? हाँ, मुझे पता था। मैंने जब भी तुमसे मिलने की कोशिश की, करीम ताया ने ही ये कहकर रोक दिया कि मामल ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाएगी और अब्बा से नफरत करेगी। फिर मैंने सब्र कर लिया। मैं जानती थी जो रब बिन यामीन को यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ला सकता है, वो महमल को भी मेरे पास ले आएगा। वो हल्का सा मुस्कुराई थी। महमल को लगा इसकी सुनहरी आंखें भीगने लगी थी। फवाद भाई, इनका केस हुमायूं ने मुझे बताया था कि मेरे कजन फवाद ने इसके साथ किसी लड़की महमल का मामला तय किया है। कम उम्र है और खूबसूरत भी है। मेरा दिल तब ही खटक गया था, मगर हुमायूं मानने को तैयार ही न था कि फवाद तुम्हारे साथ ये कर सकता है। इसे गुमान था वो कोई और लड़की होगी, मगर जिस लम्हे मैंने मस्जिद की छत पे तुम्हें देखा, मैं तुम्हें पहचान गई। आपने मुझे कभी नहीं देखा था। फिर देखा था, एक दफा तुम्हारे स्कूल आई थी तुमसे मिलने। बेंच पे बैठी तुम्हें देखती ही रही। तुम उलझी उलझी चिड़चिड़ी सी लग रही थी। फिर मुझसे तुम्हें मजीद ज़हनी अजियत नहीं दी गई तो वापस पलट गई। फरिश्ते थक कर चुप हो गई। शायद अब इसके पास कहने को कुछ ना बचा था। वो यासिर से इसे देखे गई जो बहुत थकी थकी नजर आ रही थी। बहुत देर बाद इसने फिर लब खोले। तुम खुशकिस्मत हो महमल कि तुम फरिश्तों के दरमियान रही हो। तुम यतीम नहीं रही हो। यतीमों वाली जिंदगी तो मैंने गुजारी है। इसके बावजूद मैंने कभी यतीमी का लेबल खुद पे नहीं लगाया। मेरी खाला और हुमायूं यही थे मेरे रिश्ते, और अब मेरे पास खोने को मजीद रिश्ते नहीं बचे। एक चीज मांगू तुमसे, कभी मुझे इस आजमाइश में मत डालना। मैं मजीद रिश्ते खोना। एसपी साहब के साथ आप हैं? आवाज पे इन दोनों ने सर चौंक कर उठाया। सामने यूनिफॉर्म में मलबूस नर्स खड़ी थी। जी, महमल इसके घुटनों से हाथ हटाती बेचैनी से उठी। इनको होश आ गया है, अब खतरे से बाहर है। आप इनकी? मैं इनकी फ्रेंड हूँ, इसने जल्दी से फरिश्ते की तरफ इशारा करके बताया। और ये हुमायूं साहब की बहन है। बहन? इसने चौंक कर महमल को देखा, मगर वो नर्स की तरफ मुतवज्जा थी। बहन? वो होले से ज़ेर लब बड़बड़ाई, फिर हल्का सा नफी में सर हिलाया। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर महमल नर्स के पीछे जा रही थी। इसने कुछ भी ना सुना। वो खाली हाथ बैठी रह गई। इसकी सुनहरी आंखों में शाम उतर आई थी। महमल वो शाम ना देख सकी। वो दरवाजा खोलकर हुमायूं के कमरे में दाखिल हो रही थी। वो बेड पे आंखें मूंदे लेटा था, ऊपर चादर पड़ी थी। आहट पे कदरे नकाहत से आंखें खोली। इसे देखकर हैरान रह गया। महमल छोटे छोटे कदम उठाती इसके सामने जा रुकी। भूरे सिल्की बालों की ऊंची पोनीटेल बनाए, फिरोजी शलवार कमीज, हमरंग दुपट्टा शानों पे फैलाए, वो भीगी भीगी आंखों से इसे देख रही थी। आई एम सॉरी हुमायूं। आंसू आंखों से फिसल पड़े थे। वो बदिक्कत मुस्कुराया। इधर आओ। वो चंद कदम आगे बढ़ी। इतने गुस्से में क्यों थी? मुझे माफ कर दे प्लीज। इसने बेख्तियार दोनों हाथ जोड़ दिए। हुमायूं ने बायां हाथ उठाया और इसके बंधे हुए हाथों को थाम लिया। तुमने क्यों कहा तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद नहीं? तो क्या रखती? इसके दोनों हाथ और हुमायूं का हाथ ऊपर तले एक दूसरे पे बंद हो गए थे। तुम्हें लगता है मैं बीच राह में छोड़ देने वालों में से हूँ? क्या नहीं है? आंसू इसी तरह इसकी आंखों से उबल रहे थे। क्यों इतने बदगुमान रहती हो मुझसे? बदगुमान तो नहीं, बस। फिर छुरी क्यों लाई थी? तुम्हें लगता था तुम मेरे घर में गैर महफूज होगी? वो नरमी से कह रहा था। आप मुझे माफ कर दें प्लीज। आपने माफ कर दिया तो अल्लाह भी मुझे माफ कर देगा, कहकर वो लम्हे भर को खुद में चौंक गई। आखिरी फिक्र अदा करते हुए दिल में अजीब सा एहसास हुआ था। एकदम उसे अपने हाथ छुड़ाए थे। ये सब ठीक नहीं था। आप आराम करें, मुझे मस्जिद भी जाना है। वो दरवाजे की तरफ लपकी थी। मत जाओ, वो बेख्तियार पुकार उठा था। मैं घर से मस्जिद का कह कर निकली थी। अगर ना गई तो यह खयानत होगी और पुल से रात पे खयानत के कांटे होंगे। मुझे वो पुल पार करना है।
थोड़ी देर रुक जाओगी तो क्या हो जाएगा, वो झुंझलाया था। ये हकूकुल इबाद का मामला है और ठीक है मादाम, आप जा सकती हैं। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला तो इसे लगा वो कुछ ज्यादा ही बोल गई है। सॉरी एक लफ्ज कहकर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। फरिश्ते इसी बेंच पे बैठी थे, हाथ पे सर उठाया। मैं चलती हूँ फरिश्ते, मुझे मस्जिद जाना है। ना महसूस अंदाज में इसने अपने हाथ दुपट्टे के अंदर किया कि कहीं वो इस पे किसी का लम्स ना देख ले। मिलनी हुमायूं से, इसकी आवाज बहुत पस्त थी। हाँ, इसने बेख्तियार निगाहें चुराई। फरिश्ते इसी तरह गर्दन उठाए इसे देखती, जाने इसके चेहरे पे क्या खोज रही थी। वो जिसे घबरा कर जाने को पलटी। महमल सुनो, वो जिसे बेचैनी से पुकार उठी और इससे पहले कि वो पलटती इसने नफी में सर हिलाते धीरे से कहा, नहीं कुछ नहीं, जाओ। खैरियत? जाओ, तुम्हें देर हो रही है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वो राहदारी में तेज तेज कदम उठाती दूर होती गई। फरिश्ते ने फिर से हाथों में सर गिरा लिया। उसका दिल बहुत बोझल सा हो रहा था। मस्जिद आकर भी इसे सुकून नहीं मिल रहा था। इसे थोड़ी देर हो गई थी और तफसीर की क्लास वो मिस कर चुकी थी। सारा दिन वो यूं ही मुजम्मिल सी बीती रही। ब्रेक में सारा ने इसे जा लिया। वो बरामदे के स्टेज पर बैठी थी, गोद में किताबें रखे, चेहरे पे बेजारी सजाए। तुम्हें क्या हुआ है? सारा धक के साथ आ बैठी। पता नहीं, वो झुंझलाते हुए गोद में रखी किताब खोलने लगी। फिर भी कोई मसला है? हाँ है। क्या हुआ है? अल्लाह ताला, बस। वो सर झटक कर सफा पलटने लगी। बताओ ना। अल्लाह ताला नाराज हैं, दैट्स इट। जोर से इसने किताब बंद की। ओहो, तुम खाम ख्वाह कानूती हो रही हो। अल्लाह ताला क्यों नाराज होंगे भला? बस है ना, इतनी मायूसी अच्छी नहीं होती। तुम्हें कैसे पता कि वो नाराज है? एक बात बताओ। वो जैसे खौफजदा सी इसकी तरफ घूमी। अगर तुम किसी के साथ 24 घंटे एक ही घर में रहो तो घर में दाखिल होते ही तुम्हें इस शख्स का मुंह देखकर पता नहीं चल जाता कि वो नाराज है? भले वो मुंह से कुछ ना कहे, भले तुम्हें अपनी गलती भी समझ में ना आ रही हो, मगर तुम जान लेती हो कि ना माहौल में तनाव है और फिर तुम दूसरों से पूछती फिरती हो कि इसे क्या हुआ है और फिर तुम अपनी गलती सोचती हो। मैं भी इस वक्त यही कर रही हूँ, तो मुझे करने दो। मगर मोहम्मद, तुम्हें पता है इतने अरसे से मैं रोज इधर आकर कुरान सुनती ही थी। आज मेरी तफसीर की क्लास मिस हुई है। आज मैं कुरान नहीं सुन सकी। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला मुझसे नाराज है, वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। तो अभी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। सारा के जवाब का इंतजार किए बगैर वो किताबें संभालती उठी और तेज तेज कदमों से चलती अंदर आ गई। प्रेयर हॉल खाली था, बत्तियां बुझी थी। वो खिड़की के साथ आ बैठी। खिड़की के शीशे से रोशनी छन कर अंदर आ रही थी। इसने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए। अल्लाह ताला प्लीज। अल्फाज लबों पे टूट गए, आंसू टप टप गालों पे गिरने लगे। इसने दुआ के लिए उठे हाथों को देखा। ये हाथ चंद घंटे कबल हुमायूं के हाथों में थे। लड़के लड़की का हाथ पकड़ना तो अब आम सी बात बन गई थी, मगर कुरान की तलबा के लिए वो आम सी बात न थी। वो किसी जज्बात के रेले में बह गई कि ख्याल ही न आया कि इसे यूं तन्हा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हुमायूं ने खुद को क्यों न रोका, मगर नहीं, वो हुमायूं को क्यों इल्जाम दे? वो तो कुरान का तालिब इल्म ना था, तलबा तो वो थी। समाना व अताना, हमने सुना और हमने अताअत की का वादा तो इसने कर रखा था। फिर आंसू इसी तरह इसकी आंखों में बह रहे थे। वो सर झुकाए आज का सबक खोलने लगी। अल्लाह ताला प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे हिदायत पे कायम रखो। इसे दिल से दुआ मांगते हुए मकतूबा सफा खोला। इस तरह अल्लाह इस कौम की हिदायत दे सकता है जो अपने ईमान लाने के बाद कुफ्र करे। इसके आंसू फिर से गिरने लगे। इसका रब इससे बहुत नाराज था। इसकी माफी काफी न थी। वो सिचकियों के दरमियान फिर से इस्तग़फ़ार करने लगी और उन्होंने रसूल के बरहक होने की गवाही दी थी और इनके पास रोशन निशानियां आई थी और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। वो जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी इसका रुआं रुआं कांपने लगा था। कुरान वो आईना था जो बहुत शफाफ था। इसमें सब कुछ साफ नजर आता था, इतना साफ कि कभी कभी सीखने वाले को खुद से नफरत होने लगती। इन लोगों की जजा ये है कि बेशक इन पे अल्लाह की लानत है और फरिश्तों की और सब के सब लोगों की लानत है, हमेशा रहने वाले हैं। इसमें ना इनसे अजाब हल्का किया जाएगा और ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे। इसने कुरान बंद कर दिया। ये खाली जबानी इस्तग़फ़ार काफी न था। इसने नवाफिल की नियत बांधी और फिर कितनी ही देर वो सजदे में गिरकर रोती रही। जिसके साथ हर पल हो, जो रगोजान से भी ज्यादा करीब हो, इसकी नाराजगी महसूस हो ही जाती है और इंसान इसकी नाराजगी दूर करने के लिए इतना ही कोशिश करता है जितनी वो इससे मोहब्बत करता है। जब दिल को सुकून आया तो इसने उठकर आंसू पोंछे और कुरान उठाकर ठीक इसी आयत से खोला जहाँ से छोड़ा था। आयत रोज़े अव्वल की तरह रोशन थी, मगर इसके बाद जिन लोगों ने तौबा कर ली इसका दिल जोर से धड़का और उन्होंने इस्लाह कर ली तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है।
بہت دیر سے روتے دل کو ذرا امید بندی، ذرا قرار آیا۔ یہ توبہ کی قبولیت کی نوید تو نہ تھی مگر امید ضرور تھی۔ اس نے آہستہ سے قرآن بند کیا۔ میڈم مصباح کہتی تھی اگر قرآن کی آیت میں آپ کے لیے ناراضی کا اظہار تو بھی بخشش کی امید رکھا کریں، کم از کم اللہ آپ سے بات تو کر رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہتی تھی، محمل نے اٹھتے ہوئے سوچا تھا۔ مہتاب طائی نے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ محمل سے کہو شاپنگ کے لیے چلے، اس کے جوتے کا ناپ لینا ہے ورنہ بعد میں خود کہے گی کہ پورا نہیں آتا۔ وہ بیڈ پہ کتابیں کھولے بیٹھی تھی جبکہ مسرت الماری سے کچھ نکال رہی تھی۔ طائی کی آواز سے دونوں بری طرح چونک کر انہیں دیکھا تھا جو اسے نظر انداز کی مسرت سے مخاطب تھی۔ تو وسیم والا قصہ ابھی تک باقی ہے، اس نے خوف سے سوچا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں میں پے در پہ ہونے والے واقعات نے وقتی طور پر اسے وہ معاملہ بھلا دیا تھا، یہ بھی کہ حسن کی مخالفت ابھی برقرار تھی۔ مگر طائی اماں میں انکار کر چکی ہوں۔ لڑکی، میں تمہاری ماں سے بات کر رہی ہوں مگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اس کا لہجہ نرم مگر مضبوط تھا۔ مسرت، اس سے کہو تیار ہو جائے، میں گاڑی میں اس کا ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ کھٹ کھٹ کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے بے بسی سے ماں کو دیکھا، وہ اس سے بھی زیادہ بے بس نظر آ رہی تھی۔ اماں آپ ابھی چلی جاؤ محمل، ورنہ وہ ہنگامہ کر دیں گی۔ یہ سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ وہ ضد سے ہو کر کتابیں رکھنے لگی۔ شاید حسن کچھ کر سکے، مجھے حسن سے بہت امید ہے اور مجھے اللہ سے۔ وہ کچھ سوچ کر عبایا پہننے لگی، پھر سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹا اور پن لگائی۔ خواہ مخواہ ہنگامہ کرنے کا فائدہ نہ تھا، چلی ہی جائے تو بہتر ہے، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ لاؤنج میں سیڑھیوں کے پاس لگے آئینے کے سامنے وہ رکی، ایک نظر اپنے عکس کو دیکھا۔ سیاہ حجاب میں سنہری چمک دمک رہا تھا، اونچی پونی ٹیل سے حجاب پیچھے سے اٹھ سا گیا تھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ یوں ہی خود کو دیکھتی پلٹی ہی تھی کہ آخری سیڑھی اترتے حسن پہ نظر پڑی۔ کدھر جا رہی ہو؟ طائی اماں کے ساتھ شادی کی شاپنگ پہ۔ تم راضی ہو محمل؟ وہ پہنچ کر سیس کے قریب آیا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے اٹھی۔ اس گھر میں مجھے اپنی رضا سے اس فیصلے کا اختیار نہیں ملا حسن بھائی۔ وہ کہتے ہی لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے لب وا کیے، ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اور محمل کو لگا اس نے تھپڑ دے مارا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بمشکل ضبط کر پائی تھی۔ ہاں، میں تمہیں اس دلدل سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں، آپ کورٹ میرج کی بات۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ مجھ سے یہ بات کریں گے۔ تمہیں اعتراض کیوں ہے محمل؟ یہ تمہاری شادی زبردستی وسیم سے کر دیں گے اور تم۔ حسن بھائی پلیز، آپ کو پتہ ہے کورٹ میرج کیا ہوتی ہے؟ سرکاری شادی، کاغذوں کی شادی۔ میں اس شادی کو نہیں مانتی جس میں لڑکی کے ولی کی مرضی شامل نہ ہو، اور میں کیوں یوں چپ کر شادی کروں گی، نہ آپ سے نہ وسیم سے۔ میرا راستہ چھوڑیں۔ وہ بے بس سر سامنے سے ہٹا تو وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی مہتاب طائی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اندر بیٹھی اور دروازہ ذرا زور سے بند کیا۔ اسی پر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر کوئی اندر بیٹھا۔ اس نے ڈرائیور سمجھ کر یوں ہی بیک ویو میں دیکھا تو جھٹکا سا لگا، وہ وسیم تھا۔ اپنی ازلی معنی خیز انداز میں مسکراتے وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس سے لگا اس سے غلطی ہو چکی ہے، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ لب کچلتی وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ طائی مہتاب منگنی کی شاپنگ کر رہی تھی یا شادی کی، وہ کچھ نہ سمجھ سکی، بس چپ چاپ ان کے ساتھ میٹرو میں چلی آئی۔ وہ جہاں بیٹھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سنا ہے تم نے بڑا شور ڈالا تھا؟ طائی اٹھ کر ایک شوکیس کے قریب گئی تو وہ اس کے ساتھ صوفے میں دھنس کر بیٹھا۔ محمل بدک کر اٹھی، ارے بیٹھو بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ شوق کی تیز پیلی روشنیاں وسیم کے چہرے پر پڑ رہی تھی، گریبان کے کھلے بٹن، گردن سے لپٹی چین اور شوق رنگ کی شرٹ۔ اف، اس سے کراہت آتی تھی۔ کیا بات کرنی ہے؟ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو کس سے کرنا چاہتی ہو؟ وہ استحضائیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ اس کے ذہن کے پردے پہ ایک چہرہ سا ابھرا، ایک اندرونی خواہش، ایک دبتی دباتی محبت کی ادھوری داستان۔ اس نے بے اختیار سر جھٹکا۔ نہ آپ سے نہ کسی اور سے۔ آپ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ایسے نہیں محمل ڈیئر، ابھی تو ہم نے بہت وقت گزارنا ہے۔ وہ کھڑے ہو کر اس کے قریب آیا اور پھر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دکان لوگوں سے بھری ہوئی تھی، پھر بھی محمل کو اس کے بے باک انداز سے خوف آتا تھا، نہ معلوم وہ کیا کر ڈالے۔ اچھا ادھر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ ادھر آئس کریم پارلر میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ طائی اماں بے بس تھی، وہ بھیڑ میں طائی مہتاب کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تمہاری طائی کو ان کی کوئی فرینڈ مل گئی ہے، وہ ابھی نہیں آئیں گی، تم ادھر قریب تو آؤ نا محمل ڈیئر۔ وسیم نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھامنا چاہی، اس کی انگلیاں اس کی کلائی سے ذرا سی مس ہوئی۔ محمل کو جیسے کرنٹ لگا، ہاتھ میں پکڑا ہینڈ بیگ اس نے پوری قوت سے وسیم کے منہ پر دے مارا۔ گھٹیا آدمی، پیچھے ہو، وہ چلائی تھی۔ بیگ اس کی ناک پہ زور سے لگا تھا۔
वो बिलबिला कर पीछे हटा। शोर की आवाज से बहुत से लोग इधर मुतवज्जा हुए। सेल बॉयज काम छोड़कर इनकी तरफ लपके। यू बिच! वसीम तो गुस्से से पागल ही हो गया। नाक पे हाथ रखे वो जारहाना अंदाज में इसकी तरफ बढ़ा ही तक एक लड़के ने इसे पीछे से पकड़ लिया। क्या तमाशा है? क्यों बच्ची को तंग कर रहे हो? मैडम क्या हुआ? ये बंदा तंग कर रहा था आपको? बहुत सी आवाजें आसपास उभरी। कुछ लड़कों ने वसीम को बाजुओं से पकड़ रखा था। ये मुझे तंग कर रहा था, अकेली लड़की जानकर इसने बहुमुश्किल खुद को संभाला और कहकर पीछे हट गई। इसे मालूम था क्या होगा और वाकई वही हुआ। अगले ही लम्हे वो लड़के वसीम पे पल पड़े। वो गालियां बकता खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो सब बहुत ज्यादा थे। मारो इसे और मारो, शरीफ लड़कियों को छेड़ता है। एक उमर रसीदा साहब हुजूम के पास खड़े गुस्से से कह रहे थे। जोर से मारो, इसे इबरत की मिसाल बना दो। अपने घर माँ बहन नहीं है क्या? और वो माँ जब तक दुकान में लगी हुजूम तक पहुंची, वो वसीम को मार मार कर अधमुआ कर चुके थे। ताइस की तरफ लगी। थोड़ी ही दूर सोफे पे महमल बैठी थी, टांग पे टांग रखे मुतमईन से वसीम को पिटते देख रही थी। महमल, ये इसे क्यों मार रहे हैं? क्योंकि इसके बाप के कहने पे मुझे कभी ऐसा ही मारा गया था। बकवास मत करो, बड़ी दिलचस्प बकवास है ये, आप भी इंजॉय करें ना। वो महजूज सी वसीम को पिटते देख रही थी। शॉप का बुकलाया हुआ मैनेजर और सेल्स बॉय मुश्तिल नौजवानों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। सर प्लीज देखें। सेल्स बॉयज की मिन्नत के बावजूद वो लड़के इनको देखने की जहमत ही नहीं कर रहे थे। हवास बाख्ता सी ताई मेहताब इनकी तरफ दौड़ी। मेरे बेटे को छोड़ो, पर हटो मर्दूदो! वो चिल्ला चिल्ला कर इन लड़कों को हटाने की सही कर रही थी। सोफे पे बैठी महमल मुस्कुराते हुए चिप्स का पैकेट खोल रही थी। अब ये मरते दम तक मुझे साथ नहीं लाएंगी। सारी सूरत हाल से लुत्फानंदोज होती वो चिप्स निकाल कर कुतरने लगी। इसने दरवाजा होले से बजाया। मध्यम दस्तक ने खामोशी में इर्तियाज सा पैदा किया। आ जाओ महमल। अंदर से फरिश्ते की थकन ज़दा मुस्कुराती आवाज आई। इसने हैरत से दरवाजा खोला। अस्सलाम वालेकुम। और आपको कैसे पता चला कि ये मैं हूँ? मैं तुम्हारी चाप पहचानती हूँ। वो बेड पे बैठी घुटनों पे लिहाफ पड़ा था, हाथ में कोई किताब थी। पूरे सियाह बाल शानों पे थे और चेहरे पे जरा सी थकान थी। महमल अंदर दाखिल हुई तो फरिश्ते ने किताब साइड टेबल पे डाल दी और जरा सा खसक कर जगह बनाई। आओ बैठो। नाइस रूम, फर्स्ट टाइम आई हूँ आपके हॉस्टल। महमल सताइशी निगाहें अतराफ में डालते बेड की पाइंटी के करीब बैठी। वो स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस थी, जबकि फरिश्ते बिल्कुल मुख्तलिफ घर वाले हुलिये में थी। फिर कैसा लगा हॉस्टल? बहुत अच्छा। और आप आज स्कूल क्यों नहीं आई? यूं ही तबीयत जरा मुजमहिल सी थी। वो थकान सी मुस्कुराई। इसका चेहरा महमल को बहुत जर्द सा लगा था। शायद वो बीमार थी। अपना ख्याल रखा करें। फिर कदर तवक्कुफ से गोया हुई। आप हमारे साथ हमारे घर चलकर क्यों नहीं रहती? वो आपका भी घर है, आपका हक है इस पे। आपको इस घर से अपना हिस्सा मांगना चाहिए। मुझे मिट्टी के मकान का क्या करना है? वो तो मैं एक दिन खुद भी बन जाऊंगी। मुझे तो रिश्तों में से हक चाहिए। तो इन पे जोर देना, कोई और बात करो महमल। उफ! वो ठंडी सांस लेकर रह गई। मुझे इल्म ही न था कि मेरी एक बहन भी है और सारी उम्र में बहन के लिए तरसती रही। हम लोगों के साथ के लिए नहीं तरसते महमल, हम लोगों के साथ की चाह के लिए तरसते हैं और इसी चाह से मोहब्बत करते हैं। और वो लोग मिल जाते हैं तो फिर यूं लगता है कि वो तो कुछ ना थे, सब कुछ तो वो चाह थी जिसकी हमने सदियों परस्तिश की थी। आप बीमार होकर काफी फिलॉसफी हो गई हैं। तो प्लीज अच्छा सुने, एक बात बताऊं। वो पुरजोर सी बताने लगी। कल ताई अम्मा मुझे वसीम के साथ शॉपिंग पे ले गई और मैंने ऐसे शॉप में लोगों से पिटवाया। बुरी बात, कुरान की तालवा ऐसी होती है क्या? अरे इसने मेरे साथ बदतमीजी की थी और इसे सबक सिखाने के लिए ये जरूरी था। यू नो सेल्फ डिफेंस। हुमायूं कैसा है? एकदम इसने पूछा और खुद भी हैरान रह गई। अब बेहतर है। ओह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो वाकईतन खुश हुई थी, चेहरा जैसे खिल उठा था। फरिश्ते बगौर इसके तासरात जांच रही थी। तुम इसे पसंद करती हो, राइट? इसकी निगाहें बेख्तियार झुक गई, रुखसार गुलाबी पड़ गए। इसे तवक्का न थी कि फरिश्ते इतने आराम से पूछ लेगी। बताओ ना। फरिश्ते टेक छोड़कर सीधी हुई और गौर से इसका चेहरा देखा। पता नहीं, मुझे सच बोलने वाली महमल पसंद है। हाँ शायद, इसने एतराफ करते हुए पल भर को निगाहें उठाई। फरिश्ते हनूज संजीदा थी। और हुमायूं? हुमायूं? इसके लब मुस्कुरा दिए। वो कहता है वो बीच राह में छोड़ देने वालों में से नहीं है। वो सर झुकाए मुस्कुराती हुई बेडशीट पे उंगली फेर रही थी। दूसरी तरफ देर तक खामोशी छाई रही तो इसने चौंक कर सर उठाया। फरिश्ते बिल्कुल खामोश थी। इसके दिल को यूं ही शक सा हुआ, कहीं फरिश्ते तो हुमायूं से? आखिर वो दोनों साथ पले बड़े थे। इसका दिल जोर से धड़का।
क्या सोच रही हैं? यही कि जब मैं हुमायूं के लिए तुम्हारा रिश्ता लेने जाऊंगी तो करीम चचा मुझे शूट तो नहीं कर देंगे? आखिर मैं हुमायूं की बहन हुई ना। और मोहम्मद खिलखिलाकर हंस दी। सारे वहम शक शुबे हवा हो गए। फरिश्ते भला ऐसी फीलिंग्स कैसे रख सकती थी? वो आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी। अच्छा ये देखो, इस किताब में से एक लिफाफा निकाला, एक लंच इनविटेशन। मुझे इनवाइट किया है नसीम आंटी ने। वो अम्मा की एक पुरानी फ्रेंड है, इन्हीं के क्लब में है। इस संडे को तुम चलोगी? मगर इधर क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, सिर्फ लंच है। आंटी ने कहा है अगर मैं आज जाऊं तो अच्छा है। अम्मा की कुछ पुरानी फ्रेंड से भी मिल लूंगी। तुम चलोगी? श्योर। वो पूरे दिल से मुस्कुराई और फिर कुछ देर बैठकर वापस चली आई। इतवार की दोपहर वो मुकर्ररा वक्त पे मस्जिद के बरामदे में खड़ी थी। सचिया अबाया में मलबूस सिया हिजाब चेहरे के गिर्द लपेटे वो खड़ी बार बार कलाई पे बंदी घड़ी देखती। अबाया वो अब भी कभी कभी बाहर पहनती थी। हाँ, नकाब नहीं करती थी, सिर्फ हिजाब कर लेती थी। दफ्तर ऊपर सीढ़ियों पे आहट हुई। मामल ने सर उठाया। फरिश्ते तेजी से जीना उतर रही थी। एक हाथ में चाबी पकड़े, दूसरे से वो पर्स में कुछ खंगाल रही थी। अस्सलाम वालेकुम, तुम पहुंच गई? चलो, उजलत में कहते इसने पर्स बंद किया और बरामदे की सीढ़ियां उतर गई। महमल इसके पीछे बोली, हुमायूं घर में ही होगा, मिल ना ले? वो गेट के बाहर रुककर बोली तो महमल मुस्कुरा कर बोली, श्योर। वो लाउंज में ही था, सोफे पे बैठे, पाँव मेज पे रखे, चंद फाइल्स का सरसरी सा मुताला कर रहा था। इन्हें आते देखा तो फाइल रखकर उठ खड़ा हुआ। खुशामदीद। फरिश्ते के पीछे आई। महमल को देखकर वो मुस्कुरा दिया। इसका चेहरा पहले से कदरे कमजोर लग रहा था, मगर अस्पताल में पड़े हुमायूं से वो खासा बेहतर था। मैं हुमायूं को इतने सालों में भी अस्सलाम वालेकुम कहना नहीं सिखा सकी महमल, और कभी तो मुझे लगता है मैं इसे कुछ भी ना सिखा सकूंगी। फरिश्ते ने थकी हुई सांस लेकर महमल को बताया था, अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वो हंस दिया था। बैठो। वो इसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई, मगर फरिश्ते खड़ी रही। नहीं हुमायूं, हमारे पास बैठने का वक्त नहीं है, मगर तुम्हारी बहन तो बैठ गई है। फरिश्ते ने मुड़कर महमल को देखा जो आराम से सोफे पर बैठी थी। बहन उठो, हम बैठने नहीं आए। महमल एकदम गड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। फरिश्ते हुमायूं की तरफ पलटी। हम बस तुम्हारा हाल पूछने आए थे, तुम अब ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मगर बैठो तो सही। नहीं, हमें लंच पे जाना है नसीम आंटी की तरफ। अम्मा की कुछ फ्रेंड से मिल भी लेंगे। और महमल, इसने सवालिया आईब्रो उठाई। महमल, जाहिर है मेरी बहन है तो मेरे साथ ही रहेगी ना? वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अबाया में मलबूस वो दोनों दराज कर लड़कियां इसके सामने खड़ी थी। सिया हिजाब चेहरे के गिर्द लपेटे, दोनों की एक जैसी सुनहरी आंखें थी। ये फैसला करना मुश्किल था कि इनमें से कौन ज्यादा खूबसूरत थी। हाँ, फरिश्ते 2 इंच ज्यादा लंबी जरूर थी। इसके चेहरे पे जरा संजीदगी थी, जबकि महमल के चेहरे पे कम उम्री की मासूमियत बरकरार थी। और ये वो महमल तो न थी जिससे वो पहली बार इसी लाउंज में मिला था। सियाह मुकेश की साड़ी, छोटी आस्तीनों से झलकते गदाज बाजू और ऊंचे जूड़े से निकलती घुंघराले लटों वाली इसे इसका एक एक नक्श याद था। वो कोई और महमल थी और यह बाया और हिजाब वाली कोई और थी। ऐसे क्या देख रहे हो? यही कि तुमने महमल को अपने रंग में रंग लिया। ये मेरा रंग नहीं है, ये सबकतल अल्लाह, और अल्लाह के रंग से बेहतर कौन सा रंग हो सकता है? चलो महमल। ओके हुमायूं, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम। वो महमल का बाजू थामे मुड़ी ही थी कि वो पुकार उठा, सुनो फरिश्ते। हाँ, वो दोनों साथ ही पलटी। तुम बहुत बोलती हो और तुमने महमल को एक लफ्ज भी बोलने नहीं दिया। तुम्हें मालूम है? मुझे मालूम है, और तुमने सारी उम्र तो इसी को सुनना है। ये कम है कि मैंने तुम्हें इससे मिलवा दिया है? मगर नहीं, इंसान बहुत नाशुक्र है। चलो महमल। वो महमल को बाजू से थामे इसी तरह उजलत में वापस ले गई और वो हैरतों में घेरा खड़ा रह गया। मैं सर झटक कर मुस्कुरा दिया। ये फरिश्ते को किसने बताया? इस गोल मेज के गिर्द दोनों ने अपनी निशस्तों पे बोर सी बैठी थी। बाकी कुर्सियों पे आंटी टाइप चंद खवातीन जलवाफरोज थी। महमल बार बार कलाई पे बंदी घड़ी को देखते वो वाकई बहुत बोर हो रही थी। फरिश्ते ही थी जो इसे अपने साथ बैठी नसीम आंटी से कोई ना कोई बात कर लेती, वरना वो तो मुसलसल जमाई रोकती बेजारी से इधर उधर देख रही थी। इस मुल्क में औरतों के वो हकूक हासिल नहीं जो मर्दों को हैं। वो ना चाहते हुए भी मिसेस रजी की तरफ मुतवज्जा हो गई, जो नाक चढ़ाए अपनी अंगूठियों से मर्जियन हाथ हिलाकर कह रही थी, और ये इस सदी की सबसे बेवकूफाना बात है। अगर कोई कहे कि मर्द औरत से बदतर है तो मैं नहीं मानती ऐसी किसी बात को। बिल्कुल, वो सब गरूर तफाखुर में डूबी होते एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला रही थी। महमल का पर्स मेज पे रखा था। इसने इसको उठाकर गोद में रखा और फिर अंदर से अपना सफेद कवर वाला कुरान निकाला जो वो हमेशा साथ रखती थी। ये सब जहालत की बातें हैं मिसेस रजी। जब तक इस मुल्क में तालीम आम नहीं होगी
लोग औरत और मर्द के बराबर हुकूक तस्लीम ना कर सकेंगे। और नहीं तो क्या, इसी कदामत परस्ती की वजह से आज हम यहाँ और दुनिया चांद पे पहुँच गई है। इसने सर उठाया और जरा सा खनकारी, मुझे आप लोगों से इत्तेफाक नहीं है। तमाम खवातीन चौंक कर इसे देखने लगी और मेरे पास इसके लिए दलील भी है। ये देखें, इसने गोद में रखा कुरान ऊपर किया। इधर सूरह निसा में, नहीं प्लीज, उफ नहीं, नॉट अगेन, ओ प्लीज डोंट ओपन इट। मिली जुली नागवार मुस्तरब सी आवाजों पे वो रुक कर ना समझी के आलम में इन्हें देखने लगी। जी खुदा के लिए इसको मत खोले, वो कह रही हैं, और वो हक दक बैठी रह गई। ये मुसलमान होती थी, ये वाकई मुसलमान होती थी। इनको आसमानी किताबों पे ईमान न था। ये कुरान को नहीं सुनना चाहती थी, इस अल्लाह की बात नहीं सुनना चाहती थी जिसने इनको माल और हुस्न दिया, और चाहता तो इनकी सांसें रोक देता, इनके दिल बंद कर देता, मगर इसने इनको हर नेमत दे रखी थी, फिर भी वो इसकी बात नहीं सुनना चाहती थी। ये तो कुरान की आयत है, अल्लाह का कलाम, आप सुने तो सही। ये तो इसने कहना चाहा, प्लीज आप हमारी डिस्कशन में मखल ना हो, और वो खामोश हो गई। इतने हर में शायद वो बदनसीब औरतें थी जिनको अल्लाह ने अपनी बात सुनवाना पसंद नहीं करता, और वो हर शख्स जो रोज कुरान नहीं पढ़ता वो बदनसीब होता है। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे।